हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का पार्ट 6 और इस पार्ट का हमारा टॉपिक है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक हमारा आज का टॉपिक है पार्ट 6 का, और इसके प्रीवियस जो पार्ट्स है वो आ चुके हैं और अदर पार्ट्स में आपके लिए जल्दी लेके आऊंगी हमारे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज जो मैं अपने चैनल पे आप लोग के लिए लेके आई हूँ। हमारे स्टैटिक बैंकिंग सीरीज को आप लोग हमारे चैनल पे जाके स्टैटिक बैंकिंग बाय हिमानी बिस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और इस सीरीज का हमारा कंप्लीट पीडीएफ आप लोग हमारे लास्ट पार्ट आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग इन इंडिया का हमारा सब पार्ट है कमर्शियल बैंक। The functions of commercial bank. A commercial bank is a type of bank that provides services such as accepting deposits, making business loan, and offering basic investment product that is operated as a business for profit. Definition है commercial bank की, I repeat. A commercial bank is a type of bank that provides services such as accepting deposits, making business loans, and offering basic investment product that is operated as a business for profit. Next point है, it can also refer to a bank or a division or a large bank which deals with corporations or large middle-sized business to differentiate it from a retail bank and an investment bank. A commercial bank is where most people do their banking as opposed to an investment bank. Next point है, commercial bank accept various types of deposits from public, especially from its client, including saving account deposits, recurring account deposits, and fixed deposits. These deposits are returned whenever the customer demands it or after a certain time period. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन एंड एडवांसेज ऑफ वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, cash credit, bill discounting, money at all, etc. They also give demand and term loans to all types of clients against proper security. अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक में फर्स्ट शेड्यूल बैंक, first are public sector banks. These can be further classified into nationalized banks and non-nationalized banks. These are the banks which are owned and controlled by the government. In these, the majority of stake is held by the government. Their main aim is to provide service to the public. These include State Bank of India and its associate, Dena Bank, Punjab National Bank, Canara Bank, etc. Next point has come private sector banks. So these are the banks which are owned and controlled by the private individual. So their main aim is to earn profit like any other businessman does. These include ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, Yes Bank, etc. तो ये सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। तो ये पॉइंट्स मैं आपको जो सब टॉपिक्स में करवाती हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जरूर पढ़ना है वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट है हमारा foreign banks. So these are the banks are owned and controlled by the foreign companies. They have their headquarters in other countries and open their branches in India. Example are Federal Bank, Citibank, HSBC Limited. ये सभी क्या है, foreign banks. अब बात कर लेते हैं नॉन शेड्यूल बैंक्स की। तो नॉन शेड्यूल बैंक्स के बारे में जानते हैं। The banks which are not included in the list of the scheduled bank are called the non-scheduled banks. At present, there are only 3 such banks in the country. Non-scheduled banks have to follow CRR conditions. These banks can have CRR fund with themselves as no compulsion has been made by the RBI to deposit it in the RBI. Non-scheduled banks are also not eligible for having loans from the RBI for day-to-day activities, but under the emergency conditions, RBI can grant loan to them. ये किसकी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की गई है, नॉन शेड्यूल बैंक की। अब वर्क जान लेते हैं कमर्शियल बैंक का। तो वर्क ऑफ कमर्शियल बैंक फर्स्ट है एक्सेप्टिंग मनी ऑन वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स।
सेकेंड पॉइंट है lending money by overdraft and loans both secured and unsecured. नेक्स्ट पॉइंट है providing transaction accounts. नेक्स्ट है cash management. नेक्स्ट है treasury management. नेक्स्ट क्या है प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग. नेक्स्ट पॉइंट है इसका issuing बैंक ड्राफ्ट्स एंड बैंक चेक्स. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेसिंग पेमेंट्स विया टेलीग्राफिक ट्रांसफर EFTPOS, इंटरनेट बैंकिंग और अदर पेमेंट मेथड्स. तो ये वर्क हमने डिस्कस किया है किसका कमर्शियल बैंक का. तो वर्क्स ऑफ कमर्शियल बैंक की जो मैं आपको सीरीज में कवर कर रही हूँ स्टैटिक बैंकिंग की, ये आपके एग्जाम्स के साथ साथ आपके इंटरव्यू के लिए भी ये सारे टॉपिक्स और ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब देख लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बैंक्स के टू कलेक्ट एंड क्लियर चेक्स, डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट वारंट. नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक पेमेंट्स ऑफ रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम. नेक्स्ट पॉइंट है टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन. Next है to purchase and sell securities. Next to act as trustee, attorney, correspondent and executor. Next to accept tax proceeds and tax returns. Next to provide safe deposit box to customers. Next to provide money transfer facility. Next to issue travelers checks. Next to act as referees. Next to accept various bill for payment, phone bills, gas bills, water bills. Next है to provide various cards such as credit card and debit card. ये अदर important points आपको बैंक के रिगार्डिंग बताए गए हैं. तो अब हमने जो कमर्शियल बैंक टॉपिक डिस्कस किया है अपने पार्ट 6 में, इसी पे बेस हम कुछ MCQs देख लेते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं. तो चलिए डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लायबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक. तो वो क्या है सिक्योरिटी होल्डिंग इज नॉट ए लायबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स. नेक्स्ट है व्हेन द कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट एरियाज व्हिच आर इन इफेक्ट एंड इंक्रीजेस. राइट आंसर क्या है इसका द सप्लाई ऑफ मनी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक. तो राइट आंसर हो जाएगा एक्टिंग एज अ लेंडर और लास्ट रिसोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी रिक्वायर्स द एसेट टू बी फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस. व्हाट डज इट मीन. इट मींस द एसेट टू बी फ्री फ्रॉम एनी लायबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ अ कमर्शियल बैंक. राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि मेंटेनिंग डिपॉजिट अकाउंट्स इंक्लूडिंग करंट अकाउंट्स. नेक्स्ट है इश्यू एंड पे चेक्स. नेक्स्ट कलेक्ट चेक्स फॉर द बैंक कस्टमर. राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग सेक्टर फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स. तो वो है सर्विस सेक्टर. इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्विस सेक्टर में है बैंकिंग सेक्टर. विच इज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक इनकॉर्पोरेटेड बाय द इंडियंस इन 1881. तो वो कौन सा है अवध कमर्शियल बैंक. तो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है बैंक के रिगार्डिंग कमर्शियल बैंक हमने डिस्कस किया टॉपिक पे, उसी के रिगार्डिंग आपसे ये MCQs मैंने कवर किए हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी. तो हमने ये अपना पार्ट 6 कवर किया है अपना स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का, और इसके अदर पार्ट्स में आपके जल्दी लेके आऊंगी. आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और अदर जो स्टूडेंट्स हैं आपके साथ फ्रेंड्स हैं उन लोगों को चैनल का नाम जरूर बताइए जिससे और लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकें. आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको अगर इंपॉर्टेंट वीडियो जो चैनल पे आती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप लोग हमारी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज से जुड़े रहें. तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.